Yes, sir. Good evening. Yes. Today we will start exercise 1B from question number 9. First 8 sum we have done in previous lecture. Chapter name is rational and irrational. Rational and irrational numbers. From Salina Concise. For class 9th. 9th sum, page number 16, beta. All of you open the books. Question number 9. Write a pair of irrational numbers whose difference is irrational. Irrational numbers की हमें एक पेयर लिखना है. A pair of irrational numbers whose difference is irrational. Yes, Akriti. Irrational minus irrational, we get irrational. We want this one. Then what we can do? Give me an example, Akriti. Sir, irrational minus irrational. Becomes irrational आना चाहिए. Sir, just 1 minute. Yes. Good evening, sir. Good evening, beta. Irrational minus irrational. मैं बताऊं? Yes. बोलिए सर. Simple enough. हाँ, yes, Ipshita. Sir, √3 √2 minus. Minus. Sir, वही सर 2 √2. चाहे 2√2 कर लो, चाहे √5 कर लो. Irrational minus irrational. ये रह जाएगा ना? ये add subtract नहीं हो सकते. This becomes irrational. Okay. और one more example, जैसे इसने दी थी बच्चे 3 √2 minus 2 √2. This is irrational. This is also irrational. Irrational minus irrational. आरव 3 √2 minus 2 √2 बेटा क्या आएगा? Sir, √2. √2. That is irrational. Sir, ना? irrational. Irrational minus irrational becomes irrational. Understood? 10 sum. Now, question number 10. Write a pair of irrational numbers whose difference is rational. Pair of irrational numbers बताना है जिसका difference rational हो. मतलब irrational minus irrational becomes rational. Yes, Anvesha, give me an example such that irrational minus irrational become rational. Anvesha. Sir, √2 minus √2. Same नहीं लेने बच्चे, Okay. different लेने हैं. Sir, √2 minus √3. √2 minus √3. इनको add subtract कर सकते हैं बेटा? No. तो ये तो irrational आ रहा है. This is become irrational ना? तो ये तो example wrong है. नहीं हो सकती. एक Sir, सेकंड बच्चे मैं अपने तुम बता दो, मैं कुछ नहीं बोलता, फिर तुम ही कर लो. मैं अपने आप पूछ रहा हूँ ना बच्चे, लाइन वाइज. सबकी टर्न आएगी ना? अब जिसका मैं बताऊं आ गया ना, उसको बाहर निकाल दूंगा. ओके? सर क्या हुआ? मैं जो बोला कि मैं बताऊं उसको बाहर निकाल देंगे क्लास से. Yes, Dev. Give me an example of two irrational numbers whose difference is rational. Sir, याद नहीं आ रहा है. याद करना ही नहीं है, समझ के करना है बेटा. Irrational minus irrational become rational. हाँ Sir, sir. may I try again? Yes, Anvesha. Sir, √2 minus √3 into. Into कहां से आ रहा है बीच में? माइनस करना है बेटा. Sir, 3 plus √2. Just wait. 3 plus √2 minus 5 plus √2. This is irrational जो फर्स्ट ब्रैकेट है. This is also irrational. अब जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आ गया? 3 plus √2 minus 5 minus √2. Minus √2 and plus √2 is cancel.
Yes or no? What we get? Jasleen. 3 minus 5 Sir, -2. minus 2. This is rational. Excuse Yes. me. Yes, बच्चे. सर हम एग्जांपल ये ले सकते थे √2 minus √3 into √2 plus √3. Yes, बच्चे. सर मैं भी तो एक मिनट. क्या? फिर से बोलना. इप्सिता. √3. √2 minus √3. Yes sir. √2 Min- plus √3. क्या आगे? नहीं सर into यहाँ center पे क्या में. है? यहाँ क्या है? Sorry. Okay sir. माइनस है ना? Yes sir. हाँ अन्वेश, आप तू क्लियर कर ले. तू बता दे मुझे एग्जांपल. बोल क्या लिखूं? नहीं सर हो गया क्लियर डाउट। क्लियर हो Sir. गया? सर √2 माइनस √2 भी ले सकते हैं ना? बच्चे सेम नहीं लेना, डिफरेंट Sir. लेने हैं. -√6 कैसे? रूट अथर्व सर बोलो. √2 √2 minus √6. ये माइनस कर सकता है तू इनको? हाँ सर नहीं सर. नहीं. तो ये तो इरेशनल हुआ ना? हाँ सर. हाँ जी. सर बट हम इनको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते थे √2² minus √3². बच्चे यहाँ पे सिंपल क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? सिंपल है ना. दिस वन हमने रूट खत्म करना है. रैशनल चाहिए ना हमें. Yes वी sir. हैव टू रिमूव द रूट. तो क्या किया? इरेशनल नंबर ले लिया एक. दूसरे में हमने ऐसा इरेशनल नंबर लेना है कि √2 है जो वो प्लस का ही हो. यहाँ प्लस है ना, बीच में माइनस है ना, साइन चेंज हो जाए बस. एनफ. सर हाँ जी. सर हम ये नंबर ले सकते हैं 9 plus √5. क्या बोलो? सर 9 plus √5 हाँ ले बस. सकते हैं? हाँ दिस इज इरेशनल नंबर. ओके सर. माइनस कुछ भी लिख दो. 3 plus √5 ले लो. ये सेकेंडरी रैशनल नंबर हो गया. दोनों को बच्चे सर. गुड इवनिंग. -3 minus √5. √5 is cancelled. 9 minus 3 6 is the answer. Okay. यस सर. आया समझ? यस सर. Yes sir. Yes, sir. Now next sum. Write a pair of irrational numbers whose product is irrational. Irrational number का product irrational आए. बहुत easy है. Irrational into irrational becomes irrational. कोई भी एग्जांपल ले लो. √2 into √3 ले लिया मैंने. क्या आ गया? √6 हो गया ना? Yes sir. यस और कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जांपल. दो इरेशनल नंबर जिनको मतलब मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए. ये भी ध्यान रखना. कहीं तुम √3 into √4 नहीं 3 एक मिनट जस्ट वेट. सर √10 into नहीं √6 Sir, into √3 2√6 ले लिया. √6 into √2√6 ले लिया. ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है. बट दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे √6 into √6 6 बन जाएगा. 6 2 12 आ जाएगा. तो ये रैशनल बन गया. √3 into √3. सेम नहीं लेना बेटा. मैं क्या बोल रहा हूँ? Okay sir. दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो उसको सेम नहीं लेना, उनको डिफरेंट लेना है. आया समझ? Yes sir. समझ आ गया बच्चे? Yes sir. यस हाँ जी. सर जैसे अगर एग्जाम में हमें कंडीशन दी होगी कि अलग लेना है नहीं दी कि होगी, नहीं दी होगी, पर कांटा जरूर मार देंगे टीचर्स. ओके ठीक है. यस सर। ये हवा कौन मार रहा है? अन्वेषा ही थी. नहीं सर वो कुकर है। कुकर है. जा बंद कर. Now 12th sum. Write a pair of irrational number whose product is rational. Irrational into irrational become rational. एक एग्जांपल तो ये आ गई. ये रही. सर जो पहले ही दे पहले दी. ये पहले ही दे दी है मैंने.
यस सर। कोई और एग्जांपल? सर वही वाली जो मैंने पहले दी थी। हाँ, 2 + √3 इंटू 2 - √3, दोनों की मल्टीप्लाई। यस आरव, a + b इंटू a - b क्या होता है बेटा? आरव, यस सर। a + b इंटू a - b। सर a² - b²। Very good. a² - b². That is 2² minus √3². 2² is 4 and √3² is 3. 4 minus 3, 1 is the answer. That is rational. हम ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये देनी है, ये दे लो, √5 इंटू या 3√5 इंटू 2√5। यस जसलीन, क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई? Sir, 6 into root 5. जसलीन, मेरी Sir, ना एक आदत है, सब बाकियों को तो पता है, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनसे मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछता हूँ 3-4 दिन। सबकी मतलब ये मत सोचना कि मेरे से क्यों पूछ रहे हैं बार बार। okay, sir. 3 2s are 6। 6. √5 इंटू √5 कितना होता है? 5. फिर √5 कहाँ गया? Sir, है ना? गलती होगी. गलती होगी। वेरी गुड, गलती होने के लिए होती है। बाकी क्लास में हमारे हैं 5-7 जोकर जो हमारा एंटरटेनमेंट करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है? जोकर नहीं है, इंटेलिजेंस अच्छे बच्चे हैं मतलब। Okay, sir. पता ही होगा, तूने लेक्चर सुनी होंगे, पता होगा इप्शिता। Yes, sir. सर हाँ जी बेटा। सर कितने बजे तक क्लास लगानी है? तू 8 बजे तक बच्चे, 8 o'clock अभी 10th की क्लास शुरू हो गई है, उनके एग्जाम हो गए हैं ना। ओके सर। इसको आता है नहीं, जाने की पहले हो जाती है। कहाँ जाना है? नहीं सर, आज हाँ। कॉल करना था सर, घर पे बर्थडे है ना किसका? मेरा। ओए हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे सौरभ। हैप्पी बर्थडे। Happy हैप्पी birthday. बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सौरभ हमारा का केक, हैप्पी बर्थडे। सौरभ हमारा केक। पार्टी। सर मैंने सौरभ खुद नहीं बनाया सर। सर केक नहीं लाया सर, केक मिला ही नहीं सर। ओए होए, बड़ी बड़ी माड़ी होगी तेरे साथ तो। यस सर, मेरे को लगा दुकानों पे केक मिल जाएगा, जाके पूछा 3-4 पे मिला ही नहीं। चलो सर- कोई बात नहीं। सब मैं सेंड कर देता हूँ, यहाँ के केक बहुत अच्छे रहते हैं। टॉप पे भेज देना भाई, पहुंचेगा तब तक तो उसका बर्थडे निकल चुका होगा बेचारे का। चलो बस। लेके आएगी। 13th sum 3√5 and 4√3। 3√5 and 4√3 इसको किसमें लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर, मतलब इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है वो पहले आएगा और बाद में बिगर। सर मैं कर पाऊँ ये वाला? इप्शिता अभी मैं बाहर निकाल दूं, मैंने बोला था ना। यस कैथरीन, भेज दिया उसने, सौरभ ने केक, सबको खा लो। यस सर। सौरभ ने केक भेज दिया है मैसेज बॉक्स में। सर एक में हमारा कैसा होगा? आधे से ज्यादा तो जोया खा जाएगी। यस सर। चलो बस, मैं ना अभी मैसेज बंद कर दूं, भूल जाता हूं मैं, सारे शुरू हो जाते हैं फिर मैसेज करने। हाँ चलो 3√5 and 4√3 ये। यस कैथरीन करवाओ बच्चे, हाउ वी कैन डू इट। नो दिवांशु। यस सर। इसको कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। टेल मी फास्ट। सर Sir, can you hear me? 3 into क्या 3 बच्चे? कैथरीन बोलो। 3√5 तो √45 हो जाएगा। हाँ, जैसे बच्चे हम स्क्वायर रूट में से बाहर निकालते हैं तो अंदर भी लेके जा सकते हैं ना ऐसे, बोलो।
Yes, sir. Same way this one, root 3, 4, 4 into 4. यहाँ कॉमा ही डाल दो. 5 3 15, 3 45. ये समझ आया बच्चे? 3 into 3 कैसे अंदर गया? Yes, sir. जोया समझ आया बच्चे? सर मेरे को नहीं आया। अथर्व, रूट 45 है, इसके फैक्टर्स बनाएगा. 3 into 3 into 5 बनेंगे ना? हाँ 3 बाहर आएगा ना? यस सर। तो 3 root 5 बनेगा ना? यस सर। तो 3 root 5 को मैं ये भी बना सकता हूँ बच्चे, कि नहीं बना सकते? यस सर बना सकते हैं। जो 3 बाहर है अंदर जाके 3 into 3 अंदर 2 times हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट सिंबल है, तो इसको Yes. 3 को मैं अंदर लेके गया हूँ, वही चीज की है. यहाँ पे 4 बाहर था, उसको अंदर लेके गई है. 16 3s are 48. तो असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर, दिस इज स्मॉलर. ये सिंबल बच्चे रूट 48. उसके बाद हमने यही नहीं छोड़ना. रूट 45 किससे बना है? 3 root 5 से. एंड अगर हम लोग ये लिखना भूल जाएं तो गलत हो जाएगा सर। हाँ जी, उन्होंने ये इसका थोड़ा पूछा है, उन्होंने इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछा है. अरे अच्छा, यस सर। ओके, यस सर। अभी सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट मुझे करवाएगी जसलीन. Yes, sir. घबराना नहीं है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Okay, sir. ऐसी क्वेश्चंस पूछ के ही आगे निकलोगे. यस बच्चे. Okay. Sir, 5 into यस 2, 3 times. sir. very good. And same here. 3. Yes, Jasleen. 2 already Under है. 2, 3 Cube times है, root, और not 1 root. और This is cube root, 3 beta. times. Sorry, sir. 5 to the 10 to the 20 to the 40, cube root of 40. And 3 to the 9 to the 27 to the 54. फिर से बच्चे ये स्मॉलर है, यहीं पे डाल देता हूं मैं सिंबल. 40 किससे बना? इससे, तो वो लिखेंगे 2 cube root of 5 लेस देन ये किससे बना है? 3 cube root of 2. आंसर हो गया. अब इसका थर्ड पार्ट यू कैन डू इट टू योरसेल्फ. 3 टर्म्स हैं उसमें, खुद ट्राई करोगे. हाँ, 14 सम जो है 14 भी सेम है. 2 देखो, फोर्थ रूट है ना, जैसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट था, इसमें फोर्थ रूट है. 2 4 टाइम्स अंदर चला जाएगा, इसमें 3 4 टाइम्स. सेम हियर, 7 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स. यू कैन डू इट. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अभी, पहले बिगर. कंपेयर. अब ये जो 15 सम है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. 6th रूट ऑफ 15. अब जिन्होंने मॉर्निंग में क्लास लगाई थी उनको तो आता है, ये आता है ना? टाइप का सम नहीं था उसमें, था, किया था आज मॉर्निंग में. सर इसका एग्जांपल भी दिया है बुक में। यार तू ना एग्जांपल ही कर ले। नहीं सर मैं देख रहा था सर एग्जांपल। तरबिया तरबिया यस सर। मॉर्निंग में कहाँ थी? सर एक्चुअली मेरा फिजिक्स का टेस्ट था और आज थोड़ा लेट उठी थी इसलिए। ओके। परिधि आवाज नहीं आई। परिधि नहीं आई। चलो इफ्रा कैसे करेंगे इसको बता। इफ्रा बताओ बच्चे। Yes, sir. हाँ जी बेटा। सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी बच्चे आ रही है अभी। हाँ 6 रूट ऑफ 50। ओए क्या हो गया इसको? हाँ ठीक है अभी। यस इफ्रा Yes, sir. करवाओ मुझे। कैसे करेंगे इसको? नहीं पता? इप्सिता यस सर। करवा। सर ये सबसे पहले तो चला जाएगा जो 15 है सर, √6 उसकी पावर बन जाएगी 1/6। यस जो भी रूट में कहते हैं
कुंडी कहते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं इसको, कुंडी। उसमें होना चाहिए 6, बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ है ना, दिस इज द 6th रूट ऑफ 15, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/6। और एंड इधर सेम 1/4 बन जाएगी 12 की जो पावर। यहाँ पे 4 है ना बच्चे कुंडी में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/4। हाँ जी दिस इज सर द 4th रूट, दिस इज, एक मिनट रुक जा। हाँ अब बोल, यहाँ पे क्या है, सर 6 उधर 4 है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। जो डिनोमिनेटर में है इन दोनों का एलसीएम 6 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा इप्सिता? सर 6 4 के टेबल में 6 आता है बच्चे? सर 2 के टेबल Two? में होते हैं। और एलसीएम पूछा है मैंने, दोनों के एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दोनों के टेबल में आना चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। हाँ जी बच्चे। सर इसका आ जाएगा 12। यस सर 12 आ जाएगा। मुझे साथ ले जाना एग्जाम में। नहीं सर। नहीं सर, कई बार ना चांटे खाने वाली काम करती है। सॉरी सर। मैं बताऊं, जब पूछ लो तब आता नहीं है। सर हो जाता है कभी कभी गलती बंदे से, इंसानी फैक्टर सर। चलो 15 की पावर 1/6 है बच्चे, नीचे हमें 12 चाहिए, तो 2 से नीचे डिवाइड, मतलब डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखो 1/6 है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो कट करेंगे तो 1/6 ही बचेगा ना, तो मतलब कोई चेंज नहीं है। अब जसलीन के पास 50 रुपीज हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, कितने रहेंगे जसलीन तेरे पास? सर 50। 50। तो मतलब कोई चेंज नहीं हुई ना उससे। इसी टाइप से पावर में 1/6 था, 2/2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 की पावर 2/12 आ जाएगा। 2/12 और 1/6 इज द सेम थिंग ना, मतलब कोई चेंज नहीं होगी ना, उसको मोल्ड किया हमने सिर्फ। एंड यहाँ बच्चे 1/4 था, 3/3 से 3/12 बन गया। आरव यस सर। मैंने पहले ही बोला है ना, मैं 2-3 दिन तुम्हारी पूरी क्लास लूंगा। माइक फटाफट ऑन कर लिया कर, ठीक है आरव? ओके सर। घबराना नहीं है, घबरा रहा है तू, क्वेश्चन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, मैं करवा दूंगा बेटा, ओके? ओके सर। हाँ, यहाँ पे बच्चे 15 की पावर 2, 2/12 था ना, 1/12 हो गया। क्यों ऐसे लिख सकते हैं ना हम, इसका मीनिंग क्या, पावर के ऊपर पावर्स, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 1/12, 2/12 भी बनेगा ना। ये रफ वर्क है, कहीं फेयर में कर दो ये दिस वन। तो 15 का स्क्वायर आरव 30 होता है ना? क्या कह रहे हो? 15 का स्क्वायर 30 होता है? नो सर। कितना होता है सर 225। वेरी गुड। वो ना बेचारा घबराया के बैठा हुआ है आरव, जसलीन नहीं इतना घबराई हुई जितना वो बैठा है ना आरव? यस सर। नहीं कोई बात नहीं, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। 12 का क्यूब बेटा 1728 की पावर 1/12। अब 1 जैसे 1/6 रूट में था, उसको हमने पावर में 1/6 लिखा था, उसी टाइप से इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 यहाँ पे 225, यहाँ पे बच्चे 12 1728। इन दोनों में बच्चे दिस इज बिगर, दिस इज स्मॉलर। अभी रूट में वैल्यू सेम आ गई ना, यहाँ पे 12th रूट ऑफ 225, 12th रूट ऑफ 1728, तो दिस इज बिगर। क्या लिखना था इसको, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग? कंपेयर बोला उन्होंने, कंपेयर मतलब दिस वन इज यहीं पे रहेगा अपने प्लेस पे, स्मॉलर का सिंबल आ जाएगा। कंपेयर का मतलब होता है ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर और इक्वल, इन तीनों में से। आया समझ? और लास्ट Yes, में क्या sir. लिख देंगे, ये वाली चीज लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्पेस नहीं है नीचे, दिस वन। इससे ही ये बना था ना बच्चे, और स्मॉलर सिंबल आ गया तो यहाँ पे स्मॉलर आ जाएगा। 4th रूट ऑफ 12, यू कैन डू इट इजीली। किसी को ना समझ आया हो बच्चे, जब भी रूट में वैल्यूज डिफरेंट हैं उस टाइम इस टाइप से करना है। जब बच्चे रूट में क्यूब रूट, तो उस टाइम इसको अंदर ले जाओ जो भी बाहर है,
स्क्वायर रूट तो जो भी बाहर है वो अंदर ले जाओ। जब बच्चे यहाँ पे इसके अंदर आ गया, इसका मतलब है 6th रूट ऑफ 15 है, 4th रूट ऑफ 12 है। यहाँ पे रूट इनका सेम नहीं था, स्क्वायर रूट नहीं है, ये 6th रूट है, ये 4th रूट है। तो इसको पहले सबसे पहले क्या किया हमने, इक्वल किया। कैसे किया, तो 6 है 1/6, 4 है 1/4, सेम 6 और 4 है ना नीचे, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 12। तो 6 को भी 12 बनाना है, 4 को भी 12 बनाना है। तो क्या किया हमने, 2/2 से 3/3 से, यहाँ क्या आ गया 15 की पावर 2/12, 12 की पावर 3/12, 15 की पावर 2 होल की पावर 1/12, 12 का क्यूब होल की पावर 1/12। जो 1/12 है मतलब 15 का स्क्वायर ओपन कर लिया, यहाँ पे 12 का क्यूब, फिर 1/12 12th रूट ऑफ 225 बन गया, 1/12 12th रूट ऑफ 1। अब रूट में सेम है, 12th रूट है, ये भी 12th रूट है। पहले क्या था स्टार्टिंग में 6th रूट एंड 4th रूट, तो उसको कंपेयर हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो उसको करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। आया समझ बच्चे? यस सर। सर आपने यहाँ 14 क्वेश्चन लिखा है, ये 15th क्वेश्चन है। सॉरी वो पहले डिस्कस नहीं, 15 सम। मेरी गलतियां निकालता रहा कर तू। सॉरी सर। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है। गलती होती है। वही तो सर, आप समझते ही नहीं हो सर, जब मेरी बारी आती है। एक बार गलती करे बंदा, गलती होती है, 2 बार करे गलती होती है, जब बार बार करे वो गलती नहीं होती, वो चांटे होते हैं फिर। समझे मोटो? यस। मैं तो कह रही थी, बस आपने बहुत सही किया सर, एकदम साफ सुथरा। 16th हमारी ना 2-3 लाडली बेटियां हैं यहाँ पे, एक तो इप्सिता हो गई, एक जोया हो गई, इफ्रा हो गई, ठीक है, और अन्वेषा कभी कभी लाडली बन जाती है, कभी कभी ये जब छुट्टियां मार लेती है तो लाडलापन खत्म हो जाता है इसका। और सर जोया हो गई देती हूँ, है, सर फीस टाइम पे देती हूँ। सर मैं रह गई। टीम से इसको कोई दिक्कत नहीं है, फीस चाहे तो लेट दे दे मेरे को। सर लड़के नहीं है लाडले। सर मैं लड़की हूँ सर, मैं रह गई। तेरे का बोलने लगा था वो अन्वेषा बीच में बोल पड़ेगी। नहीं सर, सर पतले हाँ। सूखे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। लोग तुम ना मेरे बच्चे भगा दोगे। कौन से बच्चे सर, सब बच्चे यहाँ पे। चलो 16th वी आर इन्फ्लुएंसिव पीपल सर। उन्होंने क्या बोला है बच्चे, इंसर्ट 2 irrational numbers between 5 and 6। 5 and 6 के इन बिटवीन 2 irrational numbers बताने हैं। जसलीन 5 को बच्चे मैं 5.0 लिख सकता हूँ। नेहा यस सर। नेहा 6 को 6.0 लिख सकता हूँ बच्चे मैं। यस सर। नेहा यस सर। नाउ 5.0 एंड 6.0 के इन बिटवीन कोई भी एक नंबर बताओ मुझे। So that should be irrational, right? बच्चे मैंने सिर्फ एक नंबर पूछा है। Four टेल मी point वन two, नंबर four, बिटवीन 5। यस बच्चे, 4, 4, 5 एंड 6 के इन बिटवीन। 5.2, यस 5.2। अब नेहा, which type of decimal is irrational? Which type? the last type, Yes. non-terminating, non-repeating. Yes, very good. Sorry, non-repeating. Non-terminating, non-repeating जो फॉर्म है डेसिमल की, that is irrational. अब न्यू स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें आता होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किया होगा फर्स्ट चैप्टर में। ये फॉर्मेट्स होते हैं। 1 नोट भी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। 1 भी नहीं है, बस वैसे तो पता होना चाहिए ना बच्चे, सर यस। क्योंकि नेक्स्ट ईयर 10th में फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी। तब कौन सिखाएगा तेरे को? कोई नहीं सिखाएगा ना। तब टीचर ने पता है क्या बोलना है, 9th में किया हुआ है ना, बस हो गया। सर मतलब ये भी तो रहेगा क्या? ऐसे नहीं है ना, कहीं ना कहीं देखो a + b का होल स्क्वायर है,
कहीं पे भी लग जाता है ना आके, वो तुमने 6th 7th में किया था, अब ये थोड़ा 6th में किया था जी, अब क्यों करें हम, ठीक है। 5.2 नॉन टर्मिनेटिंग, नेम से शो हो रहा है जिसके मतलब एंड ना हो, टर्मिनेटिंग का मतलब एंड ना हो, नॉन रिपीटिंग और रिपीट ना करे, 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट इरेशनल नंबर होगा। एक और दे दो 5.0 एंड 6.0 के इन बिटवीन 5.3 ले लिया, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कभी अगेन 201 कभी नहीं आएगा, इसमें आएगा भी तो उसके साथ 00 नहीं होगा, कुछ और होगा। अंडरस्टूड? दीज आर द इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6. Okay? ओके सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट सम, हाँ जी बेटा, सर हम लोग 5 को √25 और 6 को √36 हाँ जी हाँ लिखते जी हैं। हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 and 6 है, इसको √25 लिख सकते हैं, इसको √36। इसके इन बिटवीन कोई भी नंबर, इरेशनल नंबर बता दो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इज √26 √27 √28, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे हम। Okay? You can do as like this one also. दोनों में से जो तुम्हें इजी लगता है वो कर लो, दोनों मेथड्स तुम्हें बताती है। Now 17 sum. हाँ जी बेटा, 5.2 रैशनल नंबर है 5.2 सर। 5.2 यस सर। यस बच्चे, दिस इज टर्मिनेटिंग ना, आगे कोई डॉट नहीं है, कोई बार नहीं है इसके ऊपर, ओके सर। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, so this is rational. अब 17 sum. Insert 5 irrational numbers between 2√5 and 3√3. अब इसको इस टाइप से करेंगे, 5 irrational numbers बताने हैं, तो इसके अंदर क्या किया, 5 2 अंदर 2 टाइम्स हो जाएगा ना, same way here 3 2 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या बन गया, 5 2 10 0 20, 3 3 9 3 27। अब √20 एंड √27 के इन बिटवीन कोई भी नंबर बता दो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, √22, √25 नहीं लेना, √25 इज √23 √24 एंड √26, दीज आर। हाँ सर अगर ऐसा बोला गया कि इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन √26 एंड √27 तो क्या करेंगे? √26 एंड √27, हाँ सर। 2.6 sorry. नहीं बच्चे, इसकी लॉन्ग डिवीजन से 8 में किया था ना, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल स्क्वायर रूट फाइंड करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 26.0000 लगा के फिर पेयर बना के इसको डेसिमल में फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेट। अब टू 1 प्लेस कर लो, 2 प्लेस कर लो, तुम्हारे पे डिपेंड है। ऐसे इसको भी बच्चे √27 को भी कर लोगे ना? हाँ सर। उसके बाद कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल उसमें जड़ देना। सर नॉन टर्मिनेटिंग ना? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर देना या टर्मिनेटिंग लगा देना बच्चे उसके बीच में। मान लो √26 की वैल्यू आ गई 5.1, √27 की वैल्यू आ गई 5.2, इनके इन बिटवीन इसके साथ 0 लगा सकते हैं ना। वैसे सपोज कर रहा हूं तो 5.1 510 एंड 520 के बीच में 5.11 दिस इज टर्मिनेटिंग ना? यस सर। ये रैशनल नंबर है इनके बीच में। नहीं सर, इरैशनल चाहिए। इरैशनल चाहिए तो फिर तो कुछ भी नहीं है। √26 एंड √27 के इन बिटवीन यू कैन राइट डाउन 26.1 √27 6.2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। दीज आर आल्सो इरैशनल। ओके, रैशनल फाइंड करना है तो लॉन्ग डिवीजन से ऐसे करके करना पड़ेगा, इरैशनल करने हैं तो ऐसे हो जाएगा। ओके, यस सर। नाउ टू रैशनल नंबर आ गया ना, यही क्वेश्चन √2 एंड √3। अब रैशनल फाइंड करने हैं √2 एंड √3 के इन बिटवीन। तो वैसे √2 एंड √3 की वैल्यूज तो बच्चे हम सबको ही पता है। यस सर पता है। एक मिनट हाँ, एक मिनट आ रहा है मित्तल। √2 Yes, sir. 1.412. 1.41
2 के 4 होती है? सर सर 4 सर। √3 की आरब √3 बेटा सर 1.732। 2 यस। अब इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर सॉरी रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, टर्मिनेटिंग डेसिमल बता दो। 141 173 1.42 1.43 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, दीज आर रैशनल्स। ओके सर ओके सर। हाँ जी सर क्लास 8 o'clock तक लगेगी? हाँ, वो तो नहीं गए 8 o'clock। नहीं नहीं नो सर अभी बहुत- पड़े हैं 25 मिनट। सर अभी बहुत हाँ टाइम। जी बोलो। सर ये वाला समझ नहीं आया। ये वाला यस सर। बच्चे √2 की वैल्यू क्या होती है इफ्रा? सर 1.414 √3 की 1.732। तो डेसिमल को भूल जा, तू ये सोच तेरे पास एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इनके बीच में कोई भी एक नंबर लिख दे जो इनके इसके और इसके बीच में हो। 1415 लिख दे। यस सर। लिख दिया? यस यस सर। और नो? यहाँ डेसिमल लगा दे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे डेसिमल था, 1 प्लेस पे। अब ये डेसिमल की कौन सी टाइप है फिर? 1.415। सर टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होती है, रैशनल होती है कि इरैशनल होती है बेटा? सर रैशनल। तो ये रैशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच में। और कोई नंबर 1.6 ले ले, इनके बीच में लाई कर रहे हैं ना, 1.4 एंड 1.7 के बीच में। यस दिस इज सर। आल्सो रैशनल, टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल है बेटा। आया समझ? यस सर। सर हाँ सर आपको पता है आज बाहर आया हूँ फिर से। क्यों? सर पता नहीं, देखो सर कहाँ पे पहुंचा हूँ मैं, अगर आपसे पढ़ा जा रहा है वहां पे। वीडियो क्लियर है? एक मिनट यार, मेरा ना माउस का सेल खत्म हो गया। सर कैसे? माउस का सेल खत्म हो गया, अभी मेरे को उस पे लैपटॉप पे चलाना पड़ रहा है। मुझे लाइटें दिख रही हैं। सर इसीलिए पहुंचा हूँ अभी। नहीं तू बाहर आता क्यों है, मुझे ये तो बता दे। सर, घर में अकेले ही हूँ मैं। इसलिए बाहर आ जाता है। और सर ये कहाँ पे है? ये अपने घर के बाहर है। टहल रहा हूँ, टहलते टहलते इसीलिए मिल गया। चलो फालतू बकवास करनी आती है, अभी आ जाओ वापस। राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732, √5 की 2.235। चाहे ये वैल्यू याद कर लो बच्चे। √3 की तो पता है, √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 2.235। इसको लर्न कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। √3 1.732। वैसे ही इसके अंदर इन दोनों के इन बिटवीन टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड कर दो, तो वो क्या होंगे? रैशनल होंगे। कर लोगे सर ना? हाँ यस सर। कितनी ऐसी वैल्यूज हैं √3 √2 की जिनकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है? कहीं नहीं गिवन बच्चे, ये तो लर्न करनी है ना। √2 मतलब ये मतलब कितनी सारी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो जो पहले से गिवन रहती हैं, मतलब सर जैसे जो लर्न करने वाली हैं? भाई ये 3। सर यही 3 है बस? हाँ मोस्टली तो 2 ही होती हैं, पर √5 भी कर ही लो लर्न। ओके ओके सर। आर्या यस सर। मुझे एक बात बता, तू बिना बताए छोड़ के चली जाती है, सुबह भी बिना बताए चली गई। पूछ के तो जाना होता है ना क्लास से। सर आप पढ़ा रहे थे। फिर क्या हो गया बेटा, पूछ सकती हो ना कि मैं चली जाऊं, है ना आर्या? यस सर। हाँ यस सर। चलो अंकित जी, यस सर। तूने क्लास लगानी नहीं होती है ना? सर डेली तो लगाता। डेली कहाँ लगाता है तू? अभी एंटर किया है तूने। सर टाइम वो कितने बजे का?
सर कंप्यूटर ट्यूशन था सर, बस आज ही था, कल से नहीं होगा। कल से नहीं सर? होगा। और कोई बदतमीजी अभी हो गई ना तेरी तरफ से तो अपना हिसाब लगा लेना अंकित, नहीं सर। समझे? यस सर। मेरे को कोई भी कंप्लेंट आ गई ना, तेरे को वहां पे आगे पिटूंगा, तेरे घर आके। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा? पक्का? नहीं सर, पक्का सर। चल। हाँ जी। सर युवराज ने छोड़ दिया ट्यूशन। हाँ हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ना होता बच्चे वो छोड़ देते हैं। पढ़ना मुश्किल लगता है ना। यहाँ पे सर आप देखो प्लस 1 में पढ़ा दोगे मैं? क्या? 11th में पढ़ा दोगे? हाँ जी करवा दूंगा। ओके सर। 5th root of 16 and 5th root of 2। करवा देना, क्या? हमें भी करवा देना। ठीक है जी। सर ये 5th कुछ root of, ज्यादा आगे की नहीं सोच रहे हैं? फिर क्या हो मतलब भाई गया? 9th तो पास हाँ कर सर, लो। 10th पास हुआ नहीं और 11th 9th में पास नहीं हुई अभी। बच्चे बोल दिया कर और लेंगे पीछे हम। बोल बच्चे प्लीज। माइक ही फाड़ दिया सर, कान फट गए। 5th root of 16 into 5th root of 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। रूट में सेम है ना, तो सिंगल टाइम मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम सिंगल Yes. रूट डाल सकते हैं। 5th रूट सिंगल डाल दिया, दोनों में 5th रूट था। 16 into 2, 5th root of 32, 5th root 32, 32 का क्या बनेगा? 2 5 टाइम्स, सर 2 5 टाइम्स बनेगा ना। यहाँ ग्रुप ऑफ 5 में से 1 बाहर आए, जैसे स्क्वायर रूट में ग्रुप ऑफ 2 में से बाहर आता है, क्यूब रूट में ग्रुप ऑफ 3 में से बाहर आता है। रूट 5 में क्या होगा? 5 2 है तभी एक 2 बाहर आएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा। 2 इज द आंसर। सेकंड पार्ट इसका, 4th root of, just wait, नहीं, 243 अपॉन 4th root of 3। मैंने पहले बोला है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में बच्चे हम सिंगल कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट दोनों में रूट, जैसे यहाँ पे 5th रूट है दोनों का, तभी। यहाँ 5th रूट होता या क्यूब रूट होता तब हम नहीं कर सकते थे। यहाँ पे 4th रूट 243 अपॉन 3 कट किया 81। यस मनमोहित, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 81? सर 9 into 9। 3 into 3 प्राइम फैक्टर्स। ओ 4 टाइम्स हो जाएगा। 9 into 9 तो बाहर कुछ नहीं आएगा। अब 3 4 टाइम, 3 3 9, 3 27, 3 81। 4 ग्रुप ऑफ 4 में से 1 बाहर आएगा ना, बिकॉज हियर इट इज 4th रूट, तो 3 इज द आंसर। ओके, एंड द थर्ड पार्ट, यस अभी काफी जनों की आज टर्न नहीं आई। जस्ट वेट। सर हाँ सर, अच्छा 81 का निकाला है। ओके सर। 3 plus root 2 into 4 plus root 7। Yes, Tarbiya, tell me Yes. how we can multiply these two. Sir, we will multiply 4 plus root 7 by 3 and then देखो here this bracket, तो यहाँ multiply तो 3 भी दोनों से होगा, root 2 भी दोनों से होगा। 3 4 plus root 7 plus root 2 4 plus root 7, यही होगा ना? yes sir, तरबिया क्या आएगा बच्चे? 12 plus हाँ 3 root 7, बस, अभी नहीं बोलना। परिधि आगे क्या आएगा? So 4 root 2, Yes, root 2 into root 7, that is root 14, 40। root 4. कोई भी लाइक टर्म नहीं है ना इसमें? क्या है कोई लाइक टर्म? No इसमें sir. ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें रूट 7 है। रूट 7 वाली कोई टर्म नहीं है, रूट 2 वाली कोई नहीं है, रूट 14 वाली कोई नहीं है, और बाहर भी कुछ नहीं आ रहा रूट में से। तो दीज आर द आंसर्स। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्योंकि जब भी इस टाइप की कंडीशन आएगी, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आइडेंटिटी होती है ना? जसलीन,
Yes, sir. बताओ बच्चे। Sir, under root 3 square यस, plus under root 2 square. पहले तो स्क्वायर नहीं बोलना, स्क्वायर बोल, ठीक है? मैं भी पहले स्क्वायर ही बोलता था, फिर बच्चों ने सिखाया मुझे स्क्वायर होता Okay, है। sir. Minus 2 into root 3 into root 2, है ना? root 3 square जसलीन yes, sir. Sir, 3 प्लस root 2 square जसलीन, आवाज नहीं आई। 2 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके minus 2 under root 6. Very good. अब आगे क्या लिखूं? किसी ने नहीं बोलना, सिर्फ जसलीन बोलेगी। Sir, 5 minus 2 2 root, under root 6. तो इसको तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते 5 and 2 को? Sir, no. वेरी गुड, दिस इज द आंसर। हमारी 1B एक्सरसाइज नाउ कंप्लीटेड, Yes, ठीक sir. है? कल को बच्चे हम स्टार्ट Yes. करेंगे 1C। 1C Okay, मेन sir. एक्सरसाइज है बच्चे। 1C D तो वैसे उसका कॉम्बिनेशन ही होता है सबकी सारी एक्सरसाइजेस का। सर बस तो करिए। सर हाँ जी, बस ही करेंगे। नहीं हाँ जी, हाँ सर वो बी वाले एक्सरसाइज में आपने वो कंस्ट्रक्शन नहीं लिया है ना अभी